children. Hope all of us are doing good. The topic that we will study today is adjectives. Now think, underline the describing words in the following sentences. यहाँ पे जो आपको sentences दिए गए हैं, इनमें आपने describing words को underline करना है. For example, the first sentence is the boy is tall. अब इस sentence में हमारा describing word है tall, जिसको आप underline करेंगे. इसी तरह से बाकी के sentences में भी जो describing words हैं, आप उनको underline करेंगे. Let's do this. Read the following paragraph and fill in the blanks with suitable describing words. आप इस paragraph को read करेंगे और जहाँ पे blanks दिए गए हैं वहाँ पे आप एक suitable describing word को लिखेंगे. For example, the dog is a domestic animal. They are dash animals. तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे dash में क्या आना चाहिए है? Honest या फिर friendly या फिर loyal. तो आप जो आपको लगता है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे सूट करता है, आप इस ब्लैंक में लिखेंगे. लेट्स रीड दिस. An adjective is a word which qualifies a noun or a pronoun. They add something to the meaning of a noun or a pronoun. Adjectives वो word हैं जो noun या pronoun को qualify करते हैं या फिर उनमें कुछ meaning add करते हैं. For example, America is a rich country. The boy is brave. यहाँ पे जो हमारे highlighted words हैं rich और brave, ये मेरे describing words यानी कि adjectives हैं. Now let us look at the order of adjectives. Generally the adjective order in English is, first we have quantity or number, then quality or opinion, then size, then age, then shape, then color, then proper adjective and then purpose or qualifier. तो अगर हमें एक ही सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव्स लिखने हैं तो उनको हम किस ऑर्डर में लिखते हैं? सबसे पहले क्वांटिटी या नंबर, फिर क्वालिटी या ओपिनियन, उसके बाद साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, उसके बाद कलर, उसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव और उसके बाद पर्पस या फिर क्वालिफायर. नाउ लेट अस लुक एट दी types of adjectives. So first is adjective of quality. It tells us about the quality of a person, place or thing. It may describe age, quality, size, color, shape, feelings, etc. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो हमें किसी इंसान, जगह या चीज़ की क्वालिटी के बारे में बताता है. ये उसकी एज, क्वालिटी, साइज, कलर, शेप, फीलिंग वगैरह के बारे में बताता है. फॉर एग्जाम्पल, अ यंग बॉय वॉज ड्राइविंग अ ब्लू कार. द इंडियन आर्मी सेव्ड मेनी इंजर्ड पीपल. तो यंग, ब्लू, इंडियन, इंजर्ड, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं. देन वी हैव एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. इट टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग. किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है. फॉर एग्जाम्पल, मदन एट ऑल द ब्रेड, देयर वॉज अ लिटिल मिल्क इन द जार. तो ये जो मेरे एडजेक्टिव्स हैं ऑल और लिटिल, ये हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव ऑफ नंबर. It describes the number of nouns. It gives the answer of how many. अगर हम noun से question पूछते हैं how many, तो हमें जो number में answer मिलता है उसे कहते हैं adjective of number. For example, there are 12 months in a year. Sheila was the first girl to move. तो 12 और first हमारे adjective of number हैं. Next we have demonstrative adjective. It is used to point out the exact person, place or thing. किसी भी एक exact इंसान, जगह या चीज़ को जो point करता है वो demonstrative adjective होता है. For example, that house is yours. Such men are not faithful. तो that और such ये क्या हैं? ये demonstrative adjectives हैं. Then we have interrogative adjective. It is used with nouns to ask questions. जब हमें सवाल पूछने होते हैं तो noun के साथ हम interrogative adjectives को use करते हैं. For example, whose pen is this? What time is it? तो whose और what जो हैं ये हमारे interrogative adjective हैं. Next we have possessive adjective.
It shows possession, ownership or relation. It tells whose a thing is. कोई चीज़ किसकी है, ये possession, relation या ownership हमें possessive adjective बताते हैं. For example, his mother is not well. Your daughter is intelligent. Next we have proper adjective. It is made from proper nouns. तो proper noun से हम proper adjectives बनाते हैं. For example, he earns American dollars. I do not like European culture. तो American और European ये हमारे proper adjectives हैं. Then we have the distributive adjective. It is normally used with singular nouns. It refers to members of a group as individual. तो जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको एक इंडिविजुअल की तरह ये रेफ़र करता है और ये ज़्यादातर हम सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज़ अ डिक्शनरी, आइदर बॉय इज़ एबल टू डू दिस. तो इन दोनों सेंटेंसेस में ईच एंड आइदर ये दोनों मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं. नाउ टेल 5 qualities, that is describing words of your teacher or best friend. अपने टीचर या बेस्ट फ्रेंड की कोई भी 5 क्वालिटीज़ आप बताएं जो कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं. लेट अस राइट. अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स एंड राइट देयर काइंड्स. इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें अंडरलाइन करें और बताएं कि उनका काइंड क्या है. फॉर एग्जाम्पल, स्नेहा इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. यहाँ पे इंटेलिजेंट मेरा एडजेक्टिव है और एक किस टाइप का एडजेक्टिव है, दिस इज़ द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस में एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करें और उनका काइंड बताएं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स. ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनके ब्लैंक्स में आप सूटेबल एडजेक्टिव्स लिखें. फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द डैश प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ ब्लैंक में हम लिखेंगे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसी तरह से आप बाकी के ब्लैंक्स को भी फिल करें. नाउ मेक एडजेक्टिव्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. यहाँ जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, हंगर, इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हंग्री. बाकी के भी आप ऐसे एडजेक्टिव्स बनाएं. लेट्स एंजॉय दिस. The teacher will write an adjective on the board and will ask a student to make an adjective with the last letter of the given word. The next student will have to think of an adjective with the last letter of the previous adjective. Keep going till everyone gets a chance. तो आपकी टीचर बोर्ड पर एक एडजेक्टिव लिखेगी. उस वर्ड के एंड का जो लेटर होगा उस लेटर से एक स्टूडेंट आकर के एक नया एडजेक्टिव बनाएगा. अब जो नया स्टूडेंट ने एडजेक्टिव बनाया था उसके एंड का जो लेटर है उसको यूज करके नेक्स्ट स्टूडेंट एडजेक्टिव बनाएगा. आई होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू ऑल एंड आंसरिंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस चैप्टर विल नाउ बी easy.